कैपिटल की अगर गल करें तो कोई गल नहीं। देखो वर्किंग कैपिटल होंगे क्या है, सब तो पहले सुन लो। एक तो थ्योरी का क्वेश्चन है बेटे वर्किंग कैपिटल की कवर करना होंगे अपना वर्किंग कैपिटल, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल और क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट आर द वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये क्वेश्चन जो बनता प्लस इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल types importance and factors of working capital। पहला मैं तुम दस देना चाहना कि वर्किंग कैपिटल होंगी की होंगी है जी। वर्किंग कैपिटल मतलब ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਜਾਂ ਨੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ मतलब ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਮੇਕ ਡੇਲੀ expenses or make payments of daily expenses or routine expenses of a business concern। so अगर आप ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਇਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡ ਬੂਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਰੈਗੂਲਰ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸਿਕ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ मतलब यही है राजे। देखो राजे ग्रॉस है कि यहाँ जो करंट एसेट आप कंपनी के करंट एसेट्स को कंसीडर करते हैं वो ग्रॉस होती है। नैट होती है जो आप करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज को की कर देते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है क्लियर। आइए मैं नाल दी नाल एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। एक कंपनी की वर्किंग कैपिटल सानू कितनी चाहिए है, ज़्यादा चाहिए है या घट चाहिए, उन्होंने किहड़े-किहड़े फैक्टर्स इफेक्ट कर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सब तो पहला आएगा नेचर ऑफ बिजनेस। अगर तुहाडे बिजनेस की नेचर इदां दी है कि तुसीं ट्रेडिंग कर रहे हो, एक हुंदा मैन्युफैक्चरिंग, एक हुंदा ट्रेडिंग। अगर तुसीं ट्रेडिंग कर रहे हो, माल परचेज सेल कर रहे हो, तो थानू वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा लोड़ है, परमानेंट कैपिटल की घट लोड़ है। अगर तुसीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो
दैन तो परमानेंट कैपिटल की ज़्यादा लोड होती है, वर्किंग कैपिटल की घट लोड, ठीक है ना। लंबे समय लिए पैसा ज़्यादा चाहिए होता, डे टू डे वास्ते घट चाहिए। सो डिपेंड्स ऑन द नेचर जिदा दी तुसीं कर। उस तो बाद साइज ऑफ द फर्म, इसका नाम तो ही क्लीयर है, साइज ऑफ द फर्म। अगर कंपनी वड्डी या स्केल वड्डे ने तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, जे छोटी है तो उस हिसाब नाल वर्किंग कैपिटल। उस तो बाद द प्रोडक्शन पॉलिसीज, थोड़ी कंपनी दी प्रोडक्शन पॉलिसीज भी थोड़ी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਜ਼ਨਲ ਆ, ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसैस मतलब जिन्नियां ਉਹਦੇ ਚ ਸਟੇजेस ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇजेस ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਕੁਝ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਦੈਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ। अगर थोड़ा सीजनल वेरिएशन मैं पहले एक्सप्लेन करता, जो थोड़ा समय का सीजन प्रोडक्शन का सीजन है उस केस के जी थोड़ी डिमांड ज़्यादा होगी नहीं तो घट। उस तो बाद आ जाता जी वर्किंग कैपिटल साइकिल। एक ही होता देखो वर्किंग कैपिटल साइकिल होता कि थोड़े ही कमाए हुए पैसे कदों वापस आ रहे हैं। जिदा फॉर एग्जांपल बिजनेस ना जिहड़ा 90% उधार पे चलता, ठीक है ना। एक कलैक्शन फ्रॉम डेटर कितनी छेती हो रही है, जिदा तुसीं अज सेल की थोड़े डेटर बन गए, वो डेटर तुहानूं कितनी देर बाद पेमेंट देते, उहनूं कहंदे ने वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये जिन्ना घट होगा उन्ना ही तुहानूं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बाहरों घट होगी क्योंकि तुहाडे कोल अपना पैसा होगा। सो अगर तुहाडा वर्किंग कैपिटल साइकिल घट आ, तुहानूं पैसे छेती आ रहे हैं, कलैक्शन जल्दी हो रही है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट घट होगी नहीं तो ज़्यादा। साडा पैसा सानूं ही वापस चल छेती आ रहा है तो ठीक है। उस तो बाद रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर मतलब थोड़ा स्टॉक कितनी जल्दी रॉ मटीरियल तो फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो रही। जे ओदा रेट ज़्यादा वा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी नहीं तो। उस तो बाद क्रेडिट पॉलिसी, कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी की है। जे तो तुसीं माल बेचते हो कैश फिर तो तुहाडी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट घट होगी क्योंकि तुहाडे कोल अपना ही पैसा नाल दी नाल आई जाना। जे तुसीं क्रेडिट दे माल बेचते हो ज़्यादा फिर तुहाडी वर्किंग कैपिटल घट। उस तो बाद आंदा जी बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल होंदा जी जिहड़ा हरेक बंदे नूं फॉलो करना मतलब फेस करना पैंदा, जिहड़ा बूम रिसैशन डिप्रैशन ये सारा बिजनेस साइकिल दे विच आंदा, ठीक है ना। बूम के थोड़ा काम धंधा बहुत बढ़िया होंगे वा, ठीक है ना, तो वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। रिसैशन जो बंदा आ जाता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट घट। उस तो बाद ग्रोथ ऑफ बिजनेस, अगर थोड़ा बिजनेस ग्रो कर रहा वा, ठीक है ना, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए है। जे थोड़ा डाउन चा तो फिर वर्किंग कैपिटल घट जाती है। प्राइस लेवल चेंजेस, डिविडेंड पॉलिसी, प्राइस लेवल चेंजेस, डिविडेंड पॉलिसी की कहती है कि अगर तुम रेगुलर डिविडेंड दे रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को दैट देयर इज नो नीड, तो कोई जरूरत नहीं है मतलब आई मीन से वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा जरूरत है। गलत कह गए सॉरी। अगर तुम रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड देना हो तो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर थोड़ी पॉलिसी नो डिविडेंड है घट लोड़। तो प्राइस लेवल चेंजेस मतलब महंगाई, प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन रेट। अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा वा कंट्री के चीज़ा महंगियां हो रही ने उस केस वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, घट चाहिए, ठीक है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। अगर थोड़ी मैनेजमेंट एफिशिएंट आ, वेस्टेज घट कर रही है, रिसोर्सेज की वेस्टेज घट हो रही है, उस केस में वर्किंग कैपिटल घट चाहिए क्योंकि तुम अपना समान वधिया तरीके नाल यूज कर रहे हो। ठीक है ना। उस तो बाद लेबर एफिशिएंसी। अगर थोड़ी लेबर वधिया काम कर रही है तो जस्ट थोड़ी जी गल थोड़ी वेस्टेज घटूगी तो थोड़ी रिक्वायरमेंट घटूगी। ठीक है। इस तो बाद बैंकिंग फैसिलिटीज। अगर तो ईजिली लोन अवेलेबल है दैन देयर इज नो नीड बैंकिंग फैसिलिटीज। अगर तो ईजिली लोन अवेलेबल है दैन देयर इज नो नीड बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है उधार ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ईजिली मिल रहा वा दैन देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल वर्किंग कैपिटल बाहरों लोड तो है लेकिन फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ईजिली मिल जाना दैन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ਤੁਹਾਨੂੰ कोई टेंशन नहीं हैगी, ईजिली मिल जूगी। बैंकिंग फैसिलिटीज भी अगर बैंकिंग फैसिलिटीज लिबरल ने तो कोई चक्कर नहीं, वधिया वा वर्किंग कैपिटल मिल जूगी। अगर बैंकिंग फैसिलिटीज या उधार साडा रिस्ट्रिक्टेड महंगा वा उस केस में वर्किंग कैपिटल थोड़ी पानी। उस तो बाद मतलब वर्किंग कैपिटल तो ईजिली नहीं अवेलेबल होती। ठीक। उस तो बाद इसकी इंपॉर्टेंस। अगर ऑर्गेनाइजेशन देखो बेटे सिंपल जी गल है, तुसीं इसकी इंपॉर्टेंस आप ही बना लेनी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट सिंपल इतना सोचो, अगर ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਵਧੀਆ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਗੁੱਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਕੈਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕੈਸ਼ ਅ ਸੌਰਟ ਆਫ ਕੈਸ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ? ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ मान ਦੱਸੋ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੂਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਯੈਸ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਧੂਗੀ क्योंकि तुसी अरे डे टू डे पेमेंट्स कर पाओगे क्योंकि कैश हैगा वो अपनी डे टू डे पेमेंट्स कर पाओगे जिन्हें कहते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट। और कॉर्डियल रिलेशन बनेंगे। ठीक है ना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंस मतलब थोड़े और ये याद रखना कि इंपॉर्टेंस लिखनी है मतलब कि थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विच अगर कैश वधिया हो तो मतलब दस दो तुसी कहोगे कितने सौखे पॉइंट है। कंपनी की सॉल्वेंसी की निशानी है कि कंपनी सॉल्वेंट है। ठीक है। दूजा गुडविल ਵਧੂਗੀ जिदा तुसीं दस्सिया, ईजिली लोन मिलणगे क्योंकि तुसीं किस्तां तार सकदे, सो ईजी लोन मिलणगे। ठीक है। इस तो अलावा रेगुलर पेमेंट कर पाओगे वेजेस दी, डेली ऑपरेशंस दी। ठीक है ना। एबिलिटी टू फेस क्राइसिस, अगर कोई माड़ा टाइम भी आ जाता जे कैश होगा तो उन्होंने भी फेस कर पाओ। ठीक है ना। एबिलिटी। उस तो बाद रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाई मोरल मोटिवेशन ਵਧੂਗੀ। ठीक है। हाई मोरल ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYEES ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇजेस, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇजेस ਵੀ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ? समझ आ गई जी बेनिफिट्स? ठीक है जी, क्लियर? सो ये चीज है।